हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी स्टोरी है द चेरी ट्री, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2, जो कि स्टार्ट होगा हमारे लेट अस लिसन एक्टिविटी से, और हमारे लास्ट क्वेश्चन लेट अस एक्सप्लोर तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहली हमारी एक्टिविटी है लेट अस लिसन, जो कि आपके लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करेगी। यू विल लिसन टू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ सन एंड हिज मदर। एज यू लिसन, सेलेक्ट 4 ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो। तो जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको 1 से लेके 7 तक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब मैं ये जब बोलूंगी तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और आपको मार्क करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है तो आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। तो वीडियो की वॉल्यूम एकदम तेज कर लीजिए और फोन को अपने कान में लगा लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सन: अम्मा, could you help me with this project? Mother: why not? What's the project about? Son: it's about the Chipko movement. I have to make a PowerPoint presentation and talk about it in class. Mother: that's good. Chipko movement was all about hugging trees to prevent them from being cut. Isn't it? Such an inspiring movement it was. Son: yes, it was the first time that common people came together for the noble cause of saving trees. It showed how people can also make a difference. Have you heard or read about something similar? Mother: yes, of course. The success of the Chipko movement lead to the Apikko movement. Son: really? Does Apikko mean hugging in Kannada? So did they also hug trees to protect them? Mother: yes, they did. In this movement, people not only hugged trees to protect them but also regenerated the forest areas in the Western Ghats. Son: that's great. This reminds me of what my teacher shared about Salu Marada Thimakka last week. She is a Padma Shri awardee. Mother: what an amazing personality. I've heard about her and I'm interested to know what your teacher has shared with you. Son: she is an Indian environmentalist who has been planting trees since 1948. She has planted over 8,000 trees in the area around her village. Mother: wonderful. What I admire about her is the commitment she has toward conserving the environment. Mother: incredible. That is one superwoman. Why? But do you know who the forest man of India is? Yes, I've read about him. It is Jadav Payang from Assam. He too is a Padma Shri awardee. Isn't he the one who single-handedly turned a barren land of around 1,000 acres into a lush green forest? He did so by planting nearly 40 million trees. Mother: yes, you're absolutely right. It was not something that happened overnight. It took him 30 years to achieve this. This forest has become a habitat for different kinds of animals, including migratory birds. Son: fascinating, isn't it? I've read a book and watched a documentary in school about him, which has really inspired me. Mother: I'm glad that you have begun to care about the environment too. तो यहाँ ये जो हमारी ट्रांसक्रिप्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे ट्रू स्टेटमेंट क्या हैं। तो जो हमारे 4 स्टेटमेंट हैं वो पहला है सेकंड, द सन वाज सरप्राइज टू नो अबाउट द अपिक्को मूवमेंट। जब उसकी मदर ने उसको अपिक्को मूवमेंट के बारे में बताया तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। देन नेक्स्ट हमारा जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है थर्ड, द सन एग्रीड द चिपको मूवमेंट वाज अबाउट पीपल यूनाइटिंग टू मेक एन इम्पैक्ट। सन ने इस बात पर एग्री करा कि चिपको मूवमेंट किस बारे में था, कि लोग साथ में आए ताकि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, कुछ बदलाव ला सकें। देन थर्ड के बाद हमारा ट्रू स्टेटमेंट है फिफ्थ, द मदर वॉज क्यूरियस टू हियर अबाउट सालू मरादा ठिमक्का। मदर जो थी इंटरेस्टेड थी, काफी ज्यादा क्यूरियस थी, किसके बारे में सुनने के लिए? सालू मरादा ठिमक्का के बारे में। देन नेक्स्ट लास्ट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है सेवन, द सन फाउंड द इन्फॉर्मेशन ऑफ जादव पेयंग वंडरफुल। जब सन को जादव पेयंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला तो वो उसे वंडरफुल लगी, सही लगी।
ठीक है, तो ये हमारे 4 ट्रू स्टेटमेंट हैं, 2, 3, 5, 7। आपके आंसर सही थे कि नहीं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी पर। वर्क इन पेयर्स, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बॉक्स में क्या दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें तेज तेज पढ़ना है। राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड, और एक वर्ड में कितने सिलेबल निकल रहे हैं ये आपको बताना है। चेक योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और आप अपने आंसर्स अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो जो साउंड निकलती है, तो वो कितनी साउंड निकल रही है उसे हम सिलेबल बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ट्री, ट्री तो मैं एक बार में बोल रही हूँ, बट अगर मैंने कहा टेबल, 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 कितनी भी जल्दी बोलूँ मैं, ये 2 साउंड में निकल रहा है, टेबल, टेबल। ट्री, स्कूल एक बार में निकल रहा है, तो स्कूल में 1 सिलेबल है, ट्री में 1 सिलेबल है, टेबल, टेबल में 2 सिलेबल्स हैं। तो ऐसे ही हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है और बताना है कि ये कितने सिलेबल हैं इनमें। तो माउंटेन्स में 2 सिलेबल्स हैं, माउंटेन्स। फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर 3 सिलेबल्स, टेंड 2 सिलेबल्स, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। देन कैटरपिलर, 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 राइट, 4 साउंड्स निकल रही हैं, 4 सिलेबल्स निकल रहे हैं। फिर हिमालयन, 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 4 हमारे सिलेबल्स हैं। देन उसके बाद परफॉर्म, तो परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड। इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन। स्लोप, एक बार में बोल रहे हैं हम, स्लोप, स्लोप, राइट, तो 1 सिलेबल है। देन नेक्स्ट न्यूज़पेपर, 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 3 सिलेबल हो गए। देन उसके बाद फेवरेट, 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 फेवरेट। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। इन सारे हमारे वर्ड्स में इतने इतने सिलेबल निकल रहे हैं। किसी भी वर्ड को आपको जानना है तो आप ऐसे ही ध्यान से देख सकते हैं कि उस वर्ड में कितनी साउंड निकल रही है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पीक अबाउट वन महोत्सव दिवस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब आपको क्या करना है, वन महोत्सव के बारे में बात करनी है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बताना है। बिफोर यू स्पीक इन द असेंबली, प्रिपेयर योरसेल्फ ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब आप अपनी असेंबली में इसके बारे में बोले तो ये पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि इसको कब मनाया जाता है, इसको कौन मनाता है, क्यों मनाते हैं। तो चलिए हम अपने इनके आंसर देख लेते हैं। वन महोत्सव दिवस इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर। वन महोत्सव को स्टार्टिंग का जो वीक होता है जुलाई के, उसमें से सेलिब्रेट करा जाता है। इसे कौन सेलिब्रेट करता है, पीपल अक्रॉस इंडिया। भारत में बहुत सारे लोग हैं, वो इसको पूरे इंडिया में सब सेलिब्रेट करते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, फार्मर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल सेलिब्रेटेड। इसको स्टूडेंट से लेके फार्मर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। वाई इज इट सेलिब्रेटेड, इट प्रमोट्स ट्री प्लांटिंग टू सेव द एनवायरमेंट एंड इंक्रीज ग्रीनली। क्योंकि ये ट्री प्लांटिंग को प्रमोट करता है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें और ज़्यादा ग्रीनरी को बढ़ा सकें। राइट, हर जगह में बिल्डिंग्स ही दिखती हैं आजकल, तो अब ग्रीनरी बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। देन हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, इसको कैसे सेलिब्रेट करा जाता है, पीपल प्लांट ट्रीज, होल्ड अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ऑर्गेनाइज इवेंट इन स्कूल एंड कम्युनिटीज़। लोग पेड़ लगाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स रखते हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल और कम्युनिटीज़ में। देन उसके बाद व्हाट इज द मैसेज इट कन्वेज, कौन सा मैसेज ये कन्वे करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट टीचेस अस टू प्रोटेक्ट ट्रीज। ये हमें ये सिखाता है कि हम ट्रीज को प्रोटेक्ट करें, उन्हें काटें नहीं, नेचर को प्रोटेक्ट करें, एंड टू इंश्योर अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द फ्यूचर। और हमारी अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक हेल्दी प्लैनेट रहे, एक पोल्यूटेड सी अर्थ ना छोड़ें हम। राइट, तो दिस फेस्टिवल इज ऑल अबाउट, और ये हमारे कुछ आंसर्स हो जाएंगे। आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्पीकिंग एक्टिविटी है, तो इसको आप एक प्रॉपर स्पीच में उस हिसाब से आप अपनी असेंबली में बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो आर्टिकल क्या होता है, एक स्पीच होता है राइटिंग का जो कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखते हैं। इट शोकेसेस इंडिपेंडेंट ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय अ राइटर, और वो राइटर जो कि लिख रहा होता है इस आर्टिकल में वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा इस टॉपिक पे। इसको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखा जाता है, ये नहीं कि कहीं मूवी की बात कर रहे थे तो कहीं रात में खाना क्या खाया था ये बात करने लगे, कल स्कूल में क्या हुआ ये बात करने लगे। तो एक टॉपिक पे लिखा जाता है और जो राइटर इसे लिख रहा
रहा होता है वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन, जर्नल्स एंड ऑनलाइन पोर्टल्स। और फिर इन्हीं आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर्स, मैगजीन, जर्नल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स में पब्लिश करा जाता है। मतलब जो राइटर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है उनको शेयर करा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राफ्ट एन आर्टिकल फॉर अ स्कूल मैगजीन। अब हम समझते हैं कि जैसे अगर आपको अपनी स्कूल की मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखना हो, एक नोटिस, एक आर्टिकल ड्राफ्ट करना हो, तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या जाएगा, राइट द हेडिंग और द टाइटल ऑफ द टॉप। आप जिस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं राइट, तो आप क्या करेंगे, उसकी हेडिंग लिख देंगे, उसका टाइटल लिख देंगे। देन नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द राइटर बिलो इट एज अ बायलाइन। फिर उसके बाद आप नेम लिख सकते हैं राइटर का और उसके नीचे एज अ बायलाइन की जो आर्टिकल है ये किसने लिखा। तो यहाँ क्या आप अपना ऐसे नाम लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये किसने लिखा, ठीक है, मतलब ये आर्टिकल किसने लिखा। फिर ये एक प्रॉपर लेआउट है जो कि आप एक आर्टिकल में फॉलो करते हैं। पैराग्राफ 1 में, मतलब जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है उसमें आप क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक या इशू का। मे बी आप सेविंग प्लांट, सेविंग ट्रीज पर टॉपिक बना रहे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि मेन आइडिया क्या है, आपका मेन टॉपिक क्या है। फिर पैराग्राफ 2 में एलैबोरेट बाय गिवन फैक्ट एंड एडवांटेजेस। फिर आप जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हैं आप उसके सपोर्ट में फैक्ट्स देंगे, उसके एडवांटेजेस देंगे कि अगर हम पेड़ बचाएंगे तो इससे हमारे ये फायदे हैं। फिर पैराग्राफ 3 में कॉन्सिक्वेंसेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी हमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। देन लास्ट पैराग्राफ 4 में आप सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड विद अ वर्ड ऑफ होप, अ वर्ड ऑफ कॉशन और अ कॉल फॉर एक्शन। एंडिंग में आप एक होप के साथ, उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म कर सकते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से हम सब प्लांट्स लगाएंगे, या एक कॉशन देते हुए कि हमें ध्यान रखना चाहिए या अब हमें एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो एक स्पेसिफिक नहीं होता है, आप अपने हिसाब से जब भी आर्टिकल लिखें, जब भी आपको टॉपिक दिया जाए तो आप लिख सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ कंप्लीट द आर्टिकल फॉर अ मैगजीन ऑन ट्रीज आर लाइफलाइन, यूज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो इन द बॉक्स। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमें एक आर्टिकल दिया गया है पर ये इनकम्प्लीट है। फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से, इन बॉक्स की हेल्प से हमें क्या करना है, इस आर्टिकल को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्रीज आर लाइफ लाइन, तो सबसे पहले क्या हमारी हेडिंग आ गई कि ट्रीज हमारी लाइफ लाइन है। फिर यहाँ आपका नाम आ जाएगा, बाय अनीशा, क्लास 8th A। राइट योर नेम एंड क्लास, यहाँ आप अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं। ट्रीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, अगर हमें अर्थ पे अपनी लाइफ हमें जीना है तो उसके लिए ट्रीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। विदाउट देम लाइफ एज वी नो वुड स्टॉप एग्जिस्टेंट, अगर ट्रीज हो ही ना तो जैसा कि हम जानते हैं लाइफ ही नहीं रह पाएगी, हम सब जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ट्रीज हैं तो हम हैं। दिस इज द रीजन वाई ट्रीज आर लाइफ लाइन, इसीलिए जो ट्रीज हैं वो हमारी एक तरीके से लाइफ लाइन है। ट्री प्रोवाइड अस फूड, शेल्टर एंड इवन मेडिसिन, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिसिन देते हैं। ट्रीज ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, हम यहीं से ले रहे हैं, जैसे कि ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज आर लाइफलाइन हमारी हेडिंग हो गई। ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे हम सांस भी ले पाते हैं। मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं हम ट्रीज पर ही डिपेंडेंट हैं, राइट। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑल्सो रिड्यूस पोल्यूशन, और ये प्रोसेस क्या करती है, पोल्यूशन को भी कम करती है और एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखती है। देन यहाँ जाएगा एडिशनली, और इसके साथ साथ ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, नट्स एंड अदर फूड, इसके साथ साथ पेड़ हमें फल देते हैं, नट्स देते हैं और भी बहुत सारी खाने की चीज़ें देते हैं। ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रीज क्लाइमेट कंट्रोल में भी हमारी हेल्प करते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, जैसे मिट्टी बह जाती है तो पेड़ की जो जड़ होती है उसे पकड़ के रखती हैं, तो उस चीज को भी वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। If trees were not there, the air would be polluted, अगर पेड़ ना हो तो जो हमारी हवा है वो तो बहुत ही ज़्यादा polluted हो जाए। And we would struggle to breathe, और हम सांस भी नहीं ले पाए। Moreover, our planet would be barren, और जो हमारा ज़मीन है वो भी बंजर हो जाए, मतलब ना खेती हो पाए, ना खाना हो पाए, ना अनाज मिल पाए, कुछ हो ही ना पाए। Lacking food, shelter and life giving greenery, तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, ज़मीन जो है एकदम फालतू हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हमारे पास खाना नहीं रहेगा, रहने की जगह नहीं रहेगी, और ये जो ग्रीनरी है ये भी हमारे पास नहीं रहेगी।
टू कंक्लूड ट्रीज आर ट्रू फ्रेंड। तो मैं अपनी बात को इस बात से कंक्लूड करना चाहूंगी, खत्म करना चाहूंगी कि ये पेड़ ही हमारे असली दोस्त हैं। प्रोटेक्टेड एंड प्लांटिंग ट्री इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन ऑन अर्थ। और अगर हम इन्हीं पेड़ों को प्रोटेक्ट करें और प्लांट्स लगाएं, ट्रीज को लगाएं, तो इससे हमें क्या एक बेहतर फ्यूचर मिलेगा हम सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए। देयरफॉर वी मस्ट एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज, प्रिजर्विंग अर्थ ग्रीन लाइफलाइन फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हमें फौरन ही एक्शन लेना चाहिए, हमें अपने पेड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि अर्थ की जो ये ग्रीन लाइफलाइन है, राइट, ग्रीनरी है, जो ये पेड़ हैं, ये प्रिजर्व हो सके हमारी आने वाली जनरेशन के साथ। ठीक है, तो ये जो हमारी आर्टिकल एक्सरसाइज है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है लेट अस एक्सप्लोर। डिड यू नो दैट द बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो बनियान ट्री है वो हमारे देश का नेशनल ट्री है? आवर कंट्री हैज एज ओल्ड बनियान ट्री, सम ऑफ देम आर। और हमारे देश में बहुत ही पुराने पुराने बनियान ट्रीज हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं? द ग्रेट बनियान ट्री लोकेटेड इन शिवपुर हावड़ा नियर कोलकाता। तो एक बनियान ट्री हमारा ये है। देन उसके बाद डाडा अलाडा मारा लोकेटेड इन केथो हाली विलेज नियर बेंगलुरु। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ नेम को। देन उसके बाद थिम्मम्मा मरीमन्नू इन अनंतापुर डिस्ट्रिक्शन इन आंध्र प्रदेश। और एक दूसरा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, एक बेंगलुरु में है, एक कोलकाता में है। इट वॉज रिकॉर्डेड एज द लार्जेस्ट ट्री स्पेसिमेन इन द वर्ल्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसको क्या स्पेसिमेन, लाइक ये ऐसी स्पेसिमेन माना जाता है, इसको सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल करा गया था। कब? 1989 में। नेक्स्ट, कैलाश संकाला द टाइगर मैन ऑफ इंडिया वॉज एन इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनलिस्ट। कैलाश संकाला कौन थे? टाइगर मैन ऑफ इंडिया से जाने जाते हैं। वो एक इंडियन बायोलॉजिस्ट और एक कंजर्वेशनलिस्ट थे, मतलब वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते थे। ही कैरिड आउट अ सेंसस ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया इन 1971। उन्होंने टाइगर पर एक सेंसस करी 1971 में। लेटर बिकॉज ऑफ हिज स्टडीज ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। और उनकी पढ़ाई की वजह से बाद में क्या उन्हें पहला डायरेक्टर बनाया गया, कौन से? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। एन इनिशिएटिव टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन टाइगर। ये कैसा इनिशिएटिव था? ताकि प्रिवेंट करा जाए इंडियन टाइगर्स को, क्योंकि इंडियन टाइगर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, उस टाइम भी हो रहे थे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1992 और उनके इसी काम के लिए उनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया। नाउ फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सच इंडियंस एनवायरमेंटलिस्ट एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट। तो हमें ऐसे ही कुछ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में पता करना है और अपने आंसर्स आप शेयर कर सकते हैं। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, लीडर ऑफ चिपकू मूवमेंट टू सेव ट्रीज। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? लीडर थे चिपकू मूवमेंट के, जहां उन्होंने पेड़ों को बचाया। देन सलीम अली खान, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है, जहां उन्होंने बर्ड के कंजर्वेशन के लिए काम करा, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट। इस तरीके से हमें बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या है? राकेश सॉ द वी शेप फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड डक्स फ्लाइंग नॉर्थवर्ड। डिड यू नो? राकेश ने आसमान में देखा कि जो बर्ड्स थी वो ऐसे वी शेप बनाकर आसमान में उड़ रही थी। क्या आप जानते हैं देयर इज अ रीजन दैट दीज बर्ड्स फ्लाई इन वी शेप? तो ये जो बर्ड्स हैं ये ऐसे ही नहीं फ्लाई करती हैं वी शेप में, किसी भी शेप में फ्लाई कर सकती हैं, वी ही शेप में क्यों फ्लाई करती हैं? तो इसका एक बहुत पीछे साइंटिफिक रीजन है। द बर्ड पोजिशन देमसेल्फ इन जस्ट बिहाइंड एंड टू द साइड, बर्ड इन फ्रंट। तो क्या करती हैं बर्ड? एक तरीके से एक के बाद एक ऐसे एक दूसरे को एक के पीछे पोजीशन करती हैं, टिमिंग देयर विंग्स बीट टू कैच द अपलिफ्टिंग विंड करंट्स, ताकि जो हवा आ रही है वो इसमें क्या हो, उसके साथ वो प्रॉपरली फ्लाई कर पाएं। दिस हेल्प देम फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस इजीली एंड सेव देयर एनर्जी टू। इससे क्या होता है, वो लंबे टाइम तक हवा में उड़ भी पाती हैं और अपनी एनर्जी को सेव भी कर पाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें मौका मिला तो हम इस टॉपिक पे और ज़्यादा आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कॉमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।